ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر یوم دفاع ہے، اپنے شہیدوں اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن۔ 6 ستمبر 1965 سے 6 ستمبر 2021 تک 56 برس بیت گئے، مگر جنگ ستمبر کا ایک ایک لمحہ یوں ہی تر و تازہ ہے جیسے کسی شہید کا لہو، جیسے کسی غازی کا عزم۔ خواتین و حضرات، جنگ ستمبر پاکستان کی بقا کی جنگ تھی اور ہمارا مقابلہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے تھا، لیکن سلام پاک فوج کے سپوتوں کو جنہوں نے جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ پاک فضائیہ نے ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا تو پاک بحریہ نے ان کی جھوٹی شان و شوکت کے قلعے کو زمیں بوس کر دیا۔ ہماری ماؤں نے جب ہمیں بچپن میں لوریاں سنائیں تو ہمیں بتایا کہ 65 کی جنگ میں شیر دل اساکر پاکستان کا جو کردار ہے اسے بھول جانا کسی گناہ سے کم نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، ہماری بہادر مسلح افواج نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو لا الہ الا اللہ کے سائے میں جو سبق سکھایا وہ اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ خواتین و حضرات، پاک فوج نے ناموس وطن کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کیا تو قوم نے بھی انہیں سر کا تاج بنایا۔ دوستو، یوں تو جنگ ستمبر پورے ملک میں لڑی گئی، تاہم لاہور کا محاذ اس پوری جنگ کا مرکز رہا۔ آئیے ہم آپ کو ایک بار پھر ان مقامات پر لیے چلتے ہیں جہاں ہمارے شیر دل جوانوں نے شجاعت کی وہ داستانیں رقم کی جو کہ رہتی دنیا تک ضرب المثل بن چکی ہیں۔ ناظرین، 1965 کی جنگ کا آغاز یوں تو صوبہ سندھ میں بھارت سے ملحقہ رن آف سے ہوا، جس پر بزدل بھارتی فوج کے ایک بریگیڈ نے اپریل میں حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہا، لیکن پاکستانی فوج کے جوابی حملے سے اسے پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کو اس ہزیمت کے بعد جنگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑا، جس پر اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے اپنی مرضی کا محاذ کھولنے کی دھمکی دی۔ اپریل سے ستمبر تک بھارت چھوٹی چھوٹی اشتعال انگیز حرکتیں کرتا رہا، تاہم پاکستان کو امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں نے یقین دلایا کہ بھارت بین الاقوامی سرحد پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن مکار دشمن اپنی مکروہ کارروائیوں میں مصروف عمل رہا۔ اس نے سیالکوٹ اور لاہور جیسے اہم ترین شہروں پر حملے کا ناپاک منصوبہ بنایا اور پھر 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی شب کو بزدل نے رات کے اندھیرے میں لاہور کی بین الاقوامی سرحد پر حملہ کر دیا۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین محکم ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم پورے اتحاد اور عزم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ صدر مملکت جنرل محمد ایوب خان کے ایمان افروز اور جذبہ حریت سے معمور خطاب کی وجہ سے ملک اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد جیسے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا۔ ایوب خان کے اس جملے پاکستانیوں اٹھو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، نے قوم کے اندر گویا بجلیاں بھر دی تھیں۔ لاہور کے شہری ہاتھوں میں لاٹھیاں اور بندوقیں تھامے جوگ در جوگ واہگہ بارڈر کی جانب جانے لگے۔ ہر ایک مجاہد تھا، ہر ایک کے دل میں شہادت کا جذبہ محزن تھا۔ ہر شخص، ہر مرد و زن، ہر بچہ ناموس وطن کی خاطر اپنے فوجی بھائیوں کے شانہ بشانہ کٹ مرنے کے لیے تیار تھا۔ 5 گنا عددی برتری کے خمار میں ڈوبا بھارت نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس قوم کو للکارا تھا جو سر بکف تھی اپنی پاک سرزمین کے دفاع کے لیے۔ پاکستانی قوم کی ملک سے محبت اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جانثاری کے جرأت مندانہ جذبے نے مل کر ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اساتذہ، طلباء، شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، ڈاکٹر، سول ڈیفنس کے رضاکار، مزدور، کسان اور ذرائع ابلاغ کے نمائندے، سب کی ایک ہی دھن اور ایک ہی آواز تھی، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ ایمان ہے تیرا سرمایہ، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ اکبر۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 17 دن تک جاری رہنے والی اس جنگ میں بھارت کی 1 لاکھ فوج کا پاکستان کی 60,000 فوج سے مقابلہ تھا۔
पाक फौज के तर्जुमान अदारे ISPR की 2015 में जारी करदा जंग सितंबर के बारे में रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 21 इन्फेंट्री और माउंटेन डिवीजन, एक आर्म्ड डिवीजन, एक आजाद आर्म्ड ब्रिगेड के मुकाबले में पाकिस्तानी फौज सिर्फ 7 डिवीजन्स पर मुश्तमिल थी। दुश्मन को फिजाई और बहरी बर्तरी भी हासिल थी। बॉर्डर से 14 मील के फासले पर वाक़या पाकिस्तान का दिल लाहौर, 9 मील के फासले पर वाक़या सियालकोट और सिर्फ 3 मील दूर वाक़या कसूर दुश्मन का निशाना था। ताकत के नशे में चूर अजली दुश्मन ने ये सोचा कि वो इन तीनों अहम स्ट्रेटेजिक शहरों पर कब्जा करके पाकिस्तान को मौशी तौर पर निस्तो नाबूद कर देगा, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि वो हमेशा के लिए स्याही अपने चेहरे पर मलने जा रहा है। जंग सितंबर 17 नहीं 23 रोज तक जारी रही। जंग का आगाज तो 1 सितंबर को ही हो गया था, जब दोनों मुल्कों के दरमियान छम सेक्टर में पहली फजाई झड़प हुई। पाकिस्तानी शाहीनों स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी ने भारतीय सुरमाओं के 4 जंगी जहाजों को मार गिराया। इस फिजाई झड़प में 3 भारतीय फौजी हलाक और 1 को गिरफ्तार किया गया। आजाद कश्मीर फौज ने भारतीय फौजियों की लाशों के ढेर लगा दिए। सारा दिन भारतीय हेलीकॉप्टर अपने फौजियों की लाशें ढोते रहे। पाक फौज ने राजुड़ी, श्रीनगर, मंडी और सोनामार्ग सेक्टर्स में भारतीय फौज की पेशकदमी रोकी। सितंबर 1965 की जंग का असल मार्का 6 सितंबर को जमा। का तुझे क्या मिसला पेश करूं। अब बात कर लेते हैं वाघा सेक्टर की, जहां से रात के अंधेरे में बुज़दिल दुश्मन ने पाक सरजमीन पर अपने नापाक कदम जमाने की कोशिश की। भारतीय जर्नैलों का यह मंसूबा था कि 6 सितंबर की सुबह लाहौर की सड़कों पर भारतीय टैंक उस वक्त के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को सलामी देंगे और शाम को लाहौर जिमखाना में कॉकटेल पार्टी के दौरान बैरूनी दुनिया को यह खबर दी जाएगी कि इस्लाम का किला समझी जाने वाली रियासत पर अब कुफार का कब्जा हो चुका है। लेकिन भारत के नापाक इरादों और मंसूबों पर उस वक्त पानी फिर गया जब इसकी अफवाज को मुख्तलिफ मकामात पर पसपाई और शिकस्त की खबरें मिलने लगी। 6 सितंबर की सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब भारत की 25वीं डिवीजन के दस्तों ने मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की क़ियादत में टैंकों की मदद से सतलुज रेंजर्स की पोस्टों पर भरपूर हमला करके लाहौर की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। सतलुज रेंजर्स के मुट्ठी भर जवानों ने दुश्मन का खूब मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन तादाद में ज्यादा था। 6 सितंबर की सुबह हमारे फौजी बैक वक्त फ्रंट लाइन महाज BRB नहर पर अपनी जंगी पोजीशनों को भी तैयार कर रहे थे और दुश्मन के फायर का भी जवाब दे रहे थे। ये एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल थी, क्योंकि दुश्मन के फौजी दस्ते जिनको टैंकों की मदद हासिल थी मतवातर लाहौर की तरफ हरकत कर रहे थे। पुत्र हटाते नहीं बिकते दे की लबने विच बाजार उड़े। 7 सितंबर को पाक फजाइया के अजीम सपूत लिटिल ड्रैगन स्क्वाड्रन लीडर MM आलम मरहूम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में अपने F-86 सैबर तैयारे की मदद से 5 जदीद तरीन भारतीय हॉक्स फाइटर तैयारों को गिराकर दुश्मन की सफों में खलबली मचा दी। 8 सितंबर को भारतीय फौज का कमांडिंग ऑफिसर अपनी तमाम तर रौनक के साथ मैदान जंग से फरार हो गया। वाघा सेक्टर पर 18 बलोच रेजिमेंट के जवानों ने मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की जीप कब्जे में ले ली, जो आज भी आर्मी म्यूजियम में खड़ी भारतीयों का मुंह चढ़ा रही है। जज्बाए शौक़ शहादत की दुआ पेश करूं, अपनी जान नज़र करूं, अपनी वफा जब 6 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो राजा अजीज भट्टी बरकी के महाज पर एक कंपनी की कमान कर रहे थे। इस कंपनी के 2 प्लाटून BRB नहर की अगली तरफ तैनात थी। मेजर राजा अजीज भट्टी ने अगले मोर्चे पर जाकर दुश्मन का मुकाबला करने की ठानी। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी शब दुश्मन ने टैंकों और तोपखाने का सारा जोर लगा दिया, लेकिन अजीज भट्टी सीसा पलाई हुई दीवार साबित हुए। अजीज भट्टी ने फ्रंट से जवानों को लीड किया और दुश्मन की तकरीबन 1 बटालियन फौज को पसपा होने पर मजबूर करके अपना इलाका इसके कब्जे से छुड़वा लिया। अजीज भट्टी ने जब दुश्मन के टैंकों को बरकी की जानिब से आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तोपखाने को फौरी गोलाबारी का हुक्म दिया। भारतीय टैंक एक एक करते आग का शोला बनते रहे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पाक धरती का ये अजीम सपूत इसी जगह पर दुश्मन की तोप का एक गोला लगने से जामे शहादत नोश कर गया। ये 12 सितंबर का दिन था। अजीज भट्टी हौज़े कौसर जा पहुंचे, मगर लाहौर को मैली निगाह से देखने वाली दुश्मन की आंखें निकाल गए। मेजर अजीज भट्टी शहीद, निशाने हैदर। कौम हमेशा आपकी ममनून रहेगी। आपको कौम का सलाम। BRB नहर के किनारे पाक फौज के शुजात की इतनी दास्तानें बिखरी पड़ी हैं कि उन्हें चंद मिनटों की दस्तावेजी फिल्म में समोना
मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बाटापुर की ये यादगार शोहदा उन गुमनाम सिपाहियों के नाम से मंसूब है जिन पर आने वाली नस्लों को फख्र रहेगा। इन शहीदों ने अपनी लाजवाल कुर्बानियों से भारत का लाहौर को फतह करने का नापाक ख्वाब चकनाचूर कर दिया। सलाम इन शहीदों को, सलाम इन गाजियों को। ये ज़मीन पर्वत दश्तो दरियाओ धरती हर धड़कन कुरान करीम सूरा आल इमरान आयत नंबर 169 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, शोहदा को मुर्दा ख्याल ना करो, ये जिंदा हैं और अपने परवरदिगार के हाथ से रिस्क पा रहे हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक एक लफ्ज़ सच है। मेजर राजा अजीज़ भट्टी की यादगार पर तशरीफ़ लाएं तो उनकी यादगार के इर्द गिर्द जिंदगी महसूस होती है। यूँ लगता है कि जैसे कुछ दिन पहले ही वो शहीद हुए हों। मरकर भी न निकलेगी दिल से वतन की उल्फत, मरकर भी न निकलेगी दिल से वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। सियालकोट सेक्टर में चविंडा का महाज भारतीय फौज के टैंकों का कब्रिस्तान साबित हुआ, जहां हर महाज पर पसपाई के बाद दुश्मन ने 600 टैंकों के साथ हमला किया। पाक फौज के जवान अपने सीनों पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट गए, मगर कौम को गुलाम बनने से बचा गए। पठानकोट में पाक फजाइया के शाहीनों ने 10 भारतीय तैयारों को तहे तेग किया। पाक नेवी ने द्वारका में भारतीय फजाइया का रडार तबाह किया। भारत की कमर टूट गई। लड़ाई की हिम्मत न रही तो भारतीय वजीर आजम भागे भागे यूएनओ जा पहुंचे। अमेरिका, सोवियत यूनियन और दीगर बड़ी ताकतों की कोशिशों से जंग बंदी हुई। 23 सितंबर 1965 को ताशकंद मुआहदे की सूरत में जब जंग खत्म हुई और भारत को शिकस्त की हजीमत उठाना पड़ी तो इसने हिफ्फत मिटाने के लिए कहना शुरू कर दिया कि वो सिर्फ अगले मोर्चों पर हमला करना चाहता था, लेकिन हकीकत तो ये थी कि भारतीय फौज ने लाहौर और कसूर फ्रंट पर 13 जबकि सियालकोट फ्रंट पर 15 बड़े हमले किए, जिसमें से भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। राजस्थान और दूसरे मुल्हिका सरहदी इलाकों में छोटे मोटे ऑपरेशंस इसके अलावा थे। एक जायजे के मुताबिक 23 सितंबर 1965 की सुबह 3 बजे जब जंग बंदी हुई तो अखनौर सेक्टर में 340 मुरब्बा मील, लाहौर सियालकोट सेक्टर में 1-1 मुरब्बा मील, खीमकरन सेक्टर में 36 मुरब्बा मील, सुलेमानकी में 40 मुरब्बा मील, राजस्थान सेक्टर में 1200 मुरब्बा मील भारतीय इलाके पर पाक फौज ने कब्जा किया। इस तरह कुल 1617 मुरब्बा मील भारतीय इलाके पर पाकिस्तानी फौज 17 रोजा जंग में काबिज हुई। जी हाँ नाजरीन, अब हम मौजूद हैं हडियारा नाले के किनारे पर। यहाँ रुकने का मकसद एक गाजी को हिराजे तहसीन पेश करना है। जी हाँ, मेरी मुराद है मेजर शफकत बलोच से। इन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया वो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। इनकी बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से अगले 17 रोज तक जारी रहने वाली 1965 की जंग का पांसा पलट गया। इन्होंने सिर्फ 100 जवानों की ब्रिगेड को हडियारा नाले के अतराफ में इस तरह पोजीशन किया कि भारत ये सोचकर 9 घंटे तक आगे न बढ़ सका कि न जाने आगे पाकिस्तानी फौज के कितने जवान तैनात हैं। सलाम है मेजर शफकत बलोच को, सलाम है मेजर शफकत बलोच की ब्रिगेड को, और सलाम है मेजर शफकत बलोच की हिकमत अमली को। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दनीम इनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राही। पुत्र हटाते नहीं बिकदे की लबने विच बाजार उड़े। इख्तिताम पे बस इतना ही कि इस नामूस की हिफाजत के लिए माओं ने अपने बेटे कुर्बान किए, बहनों ने भाई भेड़ चढ़ाए और नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों ने अपने बाप वतन के नाम पर कुर्बान कर दिए। आज इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं मोदी सरकार को ललकार कर कहना चाहती हूँ कि इस वतन के बेटे अपने बाजुओं में इतनी ताकत रखते हैं कि वो आंख निकाल दें जो इस अर्ज़ मुक़द्दस को मैली नज़र से देखे, वो कलाई मरोड़ दें जो इस पाक सरजमीन को निस्तो नाबूद करने के लिए बढ़े, वो पाँव तोड़ दें जो इस पाक सरजमीन को तख्तो तराज करने के लिए बढ़े। ख़वातीन व हज़रात, इस मुल्क की हिफाजत के लिए और हमारी आज़ादी की हिफाजत के लिए शहीदों ने कुर्बानी देकर इस वतन की आज़ादी को बचा लिया, लेकिन किरदार अब हमने अदा करना है। इस वतन की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान का नाम आलमे इस्लाम में रोशन करें। पुत्र हटाते नहीं बिकदे
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे डॉक्टर निम्रा अजहर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।